Okay. Good morning, everyone. Yes, before we have seen what are the e-commerce, e-banking, online mode, online. Okay. Now, today we will see e-shopping. E-shopping means online shopping. Online shopping. Electronic shopping. Okay. Before going further, I want to ask one question. What is the difference between e-commerce and e-shopping? Means e-commerce means dealing or buying, but e-shopping means we can only buy from that website. Good. E-commerce means we are retailing the things over the internet. Suppose we are doing a business, we are selling the things. कोई भी चीज हम लोग को sell करना रहता है over the internet. That is called a e-commerce. But e-shopping means we are purchasing the things from the over the internet. Okay. Now we will see the e-shopping in detail. I'm going to share a screen. Everyone see here. Okay. Can you see the slide? Yes, miss. Okay. So before going to here, we will see what are the online shopping. Means whatever the things we are purchasing over internet, means electronic shopping. जो भी हम सामान over internet, जो भी सामान हम लोग खरीदते हैं without going physically to that shop, that is known as the online shopping. Here is written, online shopping or e-shopping is the form of electronic commerce. Good morning, ma'am. Good morning. Which allow a consumer to directly buy a good or services from a seller on a internet using a web browser. Means कि हम लोग without physically shop में जाने के बजाय हम लोग घर बैठे ही online shoppings करते हैं. चाहे आप कुछ भी ग्रोसरी चीज खरीदते हो या ड्रेसेस खरीदते हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदते हो, मींस ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द different website for the e-shopping. Okay, so next is alternative names are e-web store. भी e-web store हो गया, e-shop हो गया, means अलग अलग applications हो गए, अलग अलग websites हो गए जहां से आप online shoppings कर सकते हैं. Is it clear? Up to here clear? मैम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स which means कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोई है जो इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग को प्रोडक्ट बेच रहा है और हम लोग उसको ओवर इंटरनेट उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं. क्लियर? यू एक्ट एज अ कंज्यूमर. क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Now we will see the next topic is what can I buy online. अब हम लोग क्या क्या बाई कर सकते हैं ऑनलाइन में. मतलब कि ऑलमोस्ट मोस्ट पॉसिबिलिटीज जितनी भी चीजें आपकी डेली लाइफ में यूज होती हैं, जो भी आप सामान चाहे खाने से लेकर के पहनने तक, चाहे आप उसको डेली लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ही क्यों ना हो, आप उसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं. ओके, नाउ the thing is that here is written you can purchase almost anything online, starting with the groceries and greeting cards to sellers, cell phones and ringtones for the cell phones. Everything can purchase online. आप लोग बुक भी परचेज करते हैं
ऑनलाइन रिंगटोन्स भी कभी कभी होते हैं ना कि वॉलपेपर कुछ आपको फोन का अच्छा लग गया हो, चाहे कोई एक रिंगटोन या कोई म्यूजिक होता है, ये सारी चीजें भी ऑनलाइन में बिकती हैं जो कि आप फ्री डाउनलोड्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स में जा करके या जो भी ई शॉपिंग जो वेबसाइट्स है आप वहां से भी जा करके चीजों को आप खरीद सकते हैं। इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, miss. Okay. Yes, ma'am. So the things which we are buying over a internet means mostly everything you can buy from there. Now we will see advantage of online shopping. अच्छा, before moving here, आपके साइड से आप बताइए what is the advantage of online shopping? What is the advantage of online shopping? Ma'am, Yes. we can buy the goods without wasting the time. We can buy a goods without wasting a time. Good. Time. Good. We can Ma'am, buy the we can things buy which the are not locally product available. One by one. Yes. We can buy the goods which are not locally available. We can buy a goods which is not locally available. जो आपके आस पास में कुछ चीजें सामान ऐसी होती हैं कि मान लीजिए आपके अगल बगल में अवेलेबल नहीं है, आपके घर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है, तो ऐसी चीजों को भी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। Ma'am, क्या इसका it reduce the human effort. Yes. It's reduce the human effort. It reduce the Human effort. yes, it reduce the human efforts. Means कि physically आप जा करके वहां पर आपको जा करके वहां फिजिकली जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, ठीक है। ना हम लोग मूव करते हैं, एडवांटेजेस क्या है? इजी टू फाइंड। इजी टू फाइंड मीन्स कि आपको घर बैठे आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप वहां से बैठे बैठे आपको कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान, चाहे कुछ भी ग्रोसरीज या कुछ भी आपके नीड्स के लिए कुछ भी सामान आपको चाहिए, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट प्रोडक्ट कैन बी अ चीपर। मे बी ये हो सकता है कि जो प्राइस मार्केट में है उससे कम सस्ता आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। आप लोग कहते हैं ना कि नहीं मुझे मार्केट में ज्यादा प्राइस लग रहा है और ऑनलाइन में मुझे ज्यादा सस्ता पड़ रहा है। यस और नो? So the product which is available on the internet, it can be a cheaper also. Okay, save time and energy means ये आपके टाइम को सेव कर रहा है। आपको फिजिकली शॉप में जाने का जरूरत नहीं है। आप गए फिजिकली, आप मार्केट गए हैं, खरीद के आए, तो ये आपकी क्या टाइम और एनर्जी को भी सेव कर रहा है। फ्रीडम ऑफ चॉइस मीन्स आप कभी मार्केट जाते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर सामान के लिए कि मुझे यही लेना, बस मैं मार्केट जाऊंगा और मैं लेकर के आऊंगा। बट हियर यू कैन सी अ डिफरेंट ग्रोसरीज आइटम्स एंड द अदर्स आइटम्स you want to purchase. Okay, next point is freedom of price flexibility. मान लीजिए if you want to buy, अगर आपके पास आपके पास मनी कम है लेकिन आपको चीजें खरीदनी भी हैं, तो आप उस कम पैसे में आपके लिए क्या सुटेबल चीजें हैं वो आप वहां से खरीद सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट का दाम 1000 रुपए भी हो सकता है और उसी प्रोडक्ट का लेकिन उसका 500 भी हो सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी मैटर करती है कि आप 1000 वाला लेंगे या 5000 वाला लेंगे। ठीक है, तो हाई सेटिस्फैक्ट्री परसेंटेज मोस्टली ये होता है कि आप जो भी बाई करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन होता है, चाहे आप
अमेजोन से खरीदे, फ्लिपकार्ट से खरीदे, मिंत्रा से खरीदे, आपका हर साइट से खरीदने का एक्सपीरियंस है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मैं मिंत्रा से खरीदता हूँ तो मुझे ज्यादा जो भी मैं प्रोडक्ट मंगवाता हूँ उसकी मटेरियल और जो मैंने पैसा दिया है वो उसके लिए सफिशिएंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बायर प्रोटेक्शन। बायर प्रोटेक्शन कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो आप पहले उसके मटेरियल को देखते हैं क्या है, वो उसका रेटिंग कितना मिला है, मींस कहने की जो दूसरे पर्सन उसी चीज को खरीदे हैं वो कितने में खरीदे होंगे, या उनको जो इससे पहले मेरे से पहले वो सामान जिन्होंने खरीदा है उन्होंने क्या फीडबैक दिया है, उन्होंने कैसा प्रोडक्ट्स मींस कैसा उसका क्या पिक्चर होगा, जैसे खरीद के आएगा उसके बाद कैसे दिखेगा, ये सारी चीजें भी आप उसमें सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हाँ जो मैं खरीद रहा हूँ उसका रेटिंग अच्छा है, या जो मैं खरीद रही हूँ वो जो भी मटेरियल आएगा जो मुझे चाहिए वो सेटिस्फाई करेगा। रेयर प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अगल बगल या कुछ मार्केट में मान लीजिए आपको एक कैमरा लेना है या कैमरा का लेंस ही लेना है, तो हो सकता है कि आप उस एरिया में रहते हैं सॉरी आप उस एरिया में रहते हैं जहां पे वो कैमरा या उस कैमरे का लेंस अवेलेबल ना हो। ठीक है, आपको ये चीजें कहाँ ऑनलाइन यानी कि कुछ साइट्स में आपको अवेलेबल हो सकती है, तो आप घर बैठे उस चीज को मंगवा सकते हैं। प्राइवेसी, ऑब्वियसली प्राइवेसी कहने का मतलब है कि आपको और आपके जो आपको ई कॉमर्स से आपको और आपके साइट्स को ही पता होगा कि आप क्या परचेस कर रहे हो, आप क्या खरीद रहे हो, और जो भी चीज आप खरीद रहे हो उसके लिए जो आप पैसा पे कर रहे हो वो सिक्योरिटी जो मैं सामान खरीद रही हूँ इसी को ही मुझे पे करना है, मुझे यही खरीदना है, इसके अलावा मुझे कोई और प्रोडक्ट का एडिशनल चार्ज नहीं लग रहा है। क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Before moving to next topic, I want to ask what are the demerits of online shopping? And sometimes the quality of the product which we have bought may not be the same as we have the view. Okay, good. Anything else? Ma'am, from village to online shopping. Yes. Ma'am, online shopping does not have the personal touch of shopping. Online shopping does not have a personal touch of shopping. Okay, anyone else? Ma'am, maybe the website where we have gone that maybe it is a fraud. Okay, good. Good. Anything else? Ma'am, maybe about online shopping delay in the delivering of products. डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकता है। यस सौरभ। Sometimes the item get damaged while delivering. Sometimes the items can be damaged by the delivery boy. Okay, good. Now we will see what are the disadvantages of the online shopping. Okay, first is delay कि आप कोई भी प्रोडक्ट मंगवाए हो तो ये हो सकता है कि वो डिले लाने के लिए अगर आपको डेट दिया है कि विद इन अ वीक आपके पास आपके घर में प्रोडक्ट आ जाएगा, तो मे भी हो सकता है वो 10 डेज लगाए, 15 डेज लगाए, समहाउ कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो सकता है जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट को आपके पास लाने में डिले कर सकता है। नेक्स्ट इज इंफीरियर प्रोडक्ट्स मतलब कि मान लीजिए कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है, हो सकता है कि आपने उसमें मटेरियल्स अच्छा देखा हो कि आपको जो आपने क्लॉथ ही खरीदा है, आपने क्लॉथ खरीदा, कॉटन का क्लॉथ खरीदा है, लेकिन हो सकता है कि जो उसकी क्वालिटी होगी, जो उस जितना आपने प्राइस दिया है उसके अगेंस्ट जो आपका मटेरियल है वो खराब हो सकता है, लोअर प्रोडक्ट हो सकता है, मींस
ओके, सेकेंड इज शिपिंग चार्ज। शिपिंग चार्ज भी आपको लग सकता है कि अगर आपने कुछ खरीदा है, आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपने हेडफोन ही खरीदा, आपने मोबाइल ही खरीदा, आपने वॉच खरीदा है, तो उसके लिए अलग से हम लोग को डिलीवरिंग के लिए चार्जेस लगते हैं। चाहे वो डिपेंड करता है कि आपका और जो वेब मतलब कि जहाँ पे सर्वर है, मीन सर्वर कहने का मतलब कि जहां से आपका सामान आ रहा है वहां से और आपके घर तक का डिस्टेंस, आपके घर तक का डिस्टेंस कितना होगा। अगर ज्यादा कम डिस्टेंस होगा तो कम चार्जेस लगेंगे, अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा तो ज्यादा चार्ज लग सकता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट इज डिलीवरी प्रॉब्लम। ऐसे जैसे कि डिलीवरी प्रॉब्लम, जैसे कि साकेत ने बताया कि हो सकता है कि कोई भी चीज या आइटम्स को हम लोग परचेज करके हम लोग मंगवाए हैं, तो हो सकता है डिलीवरी बॉय से वो डैमेज हो जाए, ठीक है, या डिफेक्ट हम लोग को वो प्रोडक्ट डिफेक्ट मिले, पहले से खराब मिले, पहले से टूटा हुआ वो चीज प्रोडक्ट हम लोग को मिल सकता है। दूसरा इज स्कैम। स्कैम मीन्स कि मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया है, हो सकता है उसमें कुछ आपने जो प्राइस दिया है उस प्राइस के अकॉर्डिंग वो जो प्रोडक्ट आपको मिला है, अगर आपने मान लीजिए कि कप मंगाया, कप सेट्स मंगाया, कप सेट्स आपको एक कप सेट्स मिला है, 6 कप सेट्स मिला है आपको 100 रुपीज में, तो ये हो सकता है कि जो कप सेट 6 कप सेट्स आपको जो मिल रहा है वो आपको 5 ही मिले, 4 ही मिले, कोई इसको निकाल ले, यानी कि आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे कि जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा। Sixth thing is that some item are better to buy from the real store. मीन्स कहने का है कि कुछ चीजें, मीन्स कि मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक चीज ही खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान ही खरीद रहे हैं, आप पंखा खरीद रहे हैं, कूलर खरीद रहे हैं, वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने इसको स्टोर में जाके खरीदा, तो इलेक्ट्रिकली चीज है तो आप स्टोर में एक बार उसको कहेंगे कि भैया मुझे ये चला के दिखाइए कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप ऑनलाइन में तो कह नहीं सकते हैं, आप तो बस ऑनलाइन में वर्चुअली उसको देख सकते हैं कि दूसरों का रेटिंग दे सकते हैं, दूसरों का फीडबैक्स देख सकते हैं, लेकिन खुद एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान मैंने परचेज किया है इट इज रियली वर्किंग और नॉट in the proper way. Okay, so this is the thing. Second thing is return problem. Return problem, जब भी आप लोग कुछ बाय करते हैं तो उसके लिए कभी कभी कुछ वेबसाइट्स में रिटर्न पॉलिसी नहीं रहती है। ओके, कि कुछ भी प्रोडक्ट्स हम लोग ने खरीदा है तो हम लोग उसको रिटर्न नहीं कर सकते। एक बार मैंने अगर अभी पैंडेमिक के टाइम पे तो और भी ज्यादा कि अगर हम लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है तो उसको रिटर्न नहीं कर सकते, मुझे इमरजेंसी में वो प्रोडक्ट भी चाहिए और मेरे पास ये भी पॉलिसी नहीं है कि मैं उस चीज को रिटर्न कर सकूं। तो ये क्या है कि हम लोग उस चीज को खरीद तो लेंगे, मे भी हो सकता है वो डैमेज हो सकता है, या मे भी ये हो सकता है मैंने मैंने जिस प्राइस से खरीदा था उससे बेस्ट और चीप प्राइस में मुझे मार्केट में मिल सकता था। ठीक है, वारंटी इशू मींस कि आपको ऑनलाइन में जो भी आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे कोई भी हो जिसमें वारंटी दिया जाता है, तो इज इट नॉट नेसेसरी कि आपका वारंटी पीरियड जो आपको दिया गया है वो गारंटी में ही हो, कि हाँ कि ये इतने दिन आप चल सकता है, आपको वारंटी दिया जा रहा है कि आपका प्रोडक्ट जो है उसके लिए अगर हम लोग मार्केट से वही चीज सामान, अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान ही खरीदते हैं और हम लोग को वारंटी दिया जाता है, तो हम लोग अगर उस इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग एक कॉल करेंगे, उसका जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा वो घर में आकर के उस मशीन को ठीक करके वो जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग को ऑनलाइन में प्रॉब्लम हो सकती हैं। क्लियर? यस मैम। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आपका है ई रिजर्वेशन। ठीक है,
इन द नेक्स्ट क्लास मैं पीपीटी से ही ई रिजर्वेशन आपको एक्सप्लेन करूंगी, ओके। एज वेल एज आज बस थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ई रिजर्वेशन क्या है, ओके। ई रिजर्वेशन मींस इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन। अगर आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो आप लोग क्या घर बैठे आप लोग घर में ही रिजर्वेशन कर सकते हैं। रिजर्वेशन करने का मतलब कि आपको कहीं ट्रैवल करना है तो आप अपनी सीट जो भी आप चाहे फ्लाइट से जा रहे हो, चाहे ट्रेन से जा रहे हो, चाहे बस से जा रहे हो, तो आप अपने लिए फिक्स कर लेते हो ना कि मुझे टिकट मिल गया है, मैंने कंफर्म हो गया कि मेरे को जाना है इस डेट में। इट हैपन और नॉट? तो ये चीज क्या आप फिजिकल रिजर्वेशन ऑफिस में आपको जाने की जरूरत नहीं होगा कि आपको रिजर्वेशन ऑफिस में जाना है और टिकट बुक कराना है। आप घर बैठे ही बाय योर फोन, ओके, और बाय योर जस्ट अ मिनट, okay, 2 point is left, 2 topic is left, so just I'm sharing the screen. Okay, can you see some apps for the online shopping? Okay, here are some sites or some application through which you can do a online shopping, like Amazon हो गया, Flipkart हो गया, eBay हो गया, मित्रा हो गया, जबोंग। ये डिफरेंट क्या है, ये डिफरेंट एप्स है, ये डिफरेंट साइट्स है जहां पे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। क्लियर? यस मैम। एंड वन थिंग मोर, आपका क्लास रिकॉर्डेड क्लास आपके ग्रुप में मिल जाएगा, आप उसको वॉच करना। अगर लगता है किसी को कि मैंने लेक्चर मुझे सुनाई नहीं दिया, मेरे से छूट गया है, तो आपको रिकॉर्डेड ये सेशन का रिकॉर्डेड वीडियो आपके क्लास में प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर? मैम डेली रिकॉर्ड होगा? यस, डेली रिकॉर्ड होगा। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। Now come to the topic. Here, how does the payment method of online shopping? क्या क्या पेमेंट मेथड है ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए? ठीक है, जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस है ऑनलाइन मेथड। मैंने बताया है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम एप्लीकेशन, फोन पे एप्लीकेशन, गूगल पे एप्लीकेशन, ये क्या है, डिफरेंट एप्लीकेशन है। नेट बैंकिंग हो गया, कैश ऑन डिलीवरी हो गया, ये सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट को बुक करते हो। कि मुझे मान लीजिए आपने अमेजोन से आपने एक वॉच मंगवाया, ओके, वॉच को आपने ऑनलाइन पे किया, ऑनलाइन पे भी किया और आपके घर तक आ गया। तो ये क्या पूरा प्रोसेस आपका हो गया ऑनलाइन शॉपिंग। एंड थ्रू द डिफरेंट मेथड यू कैन पे फॉर द ऑनलाइन शॉपिंग। क्लियर? यस मैम। Okay. First, as we have discussed earlier कि what are the method online payment के लिए क्या-क्या अलग-अलग method। Now everyone come to the topic. Yes, Roshni, you ask for the online method. ऑनलाइन मेथड पे करने के लिए क्या होता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैसे ई कॉमर्स में देखा था कि कैसे डिफरेंट मेथड होते हैं जिससे आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ई कॉमर्स हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, कैश ऑन डिलीवरी हो गया, अदर पेमेंट्स सोर्सेस लाइक जैसे पे, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, अमेजोन हो गया। ये जो आपको दिख रहा है ना, गूगल पे, भीम, फोन पे, अमेजोन, ये सारे क्या है, ये सारे एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। आप पहले इस वाले एप्लीकेशन, ये जस्ट अ मिनट, ये जो एप्लीकेशन है इसमें आप पहले अपना अकाउंट बनाते हैं, अपने
अकाउंट जो आपका बैंक अकाउंट है वो सारे डिटेल्स देते हैं। आपका बैंक अकाउंट नाम हो गया, आपका नंबर हो गया, आप अपना CVV नंबर डालते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। तो क्या होता है, जो भी डेटा है वो इस भीम एप्लीकेशन में आपके अकाउंट का, जो बैंक अकाउंट का डिटेल है उस भीम एप्लीकेशन में ऐड हो जाता है। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन से चेक कर सकती हैं कि आपके पास कितना, आपके अकाउंट में कितना मनी है, आपके अकाउंट में कितना मनी स्पेंड किया है, आपने कितना ट्रांजैक्शन किया है, लास्ट ट्रांजैक्शन आपने क्या परचेज किया था, उसके लिए आपने क्या पे किया। ललन प्लीज डोंट डू सो। these are the application through which you are paying for the online products. आपको कुछ नहीं करना। जब भी आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जब आप परचेज करते हो, जब आप बाई कर लेते हो, अपना एड्रेस डाल लेते हो, ठीक है, अपना फोन नंबर डाल लेते हो, मीन्स आप अपना डिटेल डाल लेते हो जब उस पे, तो एक मेथड देता है कि आप भीम से पे करना चाहते हैं, कि क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, कि डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, कि आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं। ये क्या है, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग सोर्स है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। मीन्स कि मान लीजिए कि मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा है और मुझे अभी ही पे करना है, ताकि अगर मान लीजिए हो सकता है कि ATM से आपके पास पैसा नहीं निकले, आपके पास पैसा ना बचे हो, तो आपके पास कैश नहीं होगा, डायरेक्ट आपने पे कर दिया है उस प्रोडक्ट के लिए, तो आपके घर में वो डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट्स दे देगा, आपसे पैसा कुछ नहीं लेगा। ठीक है, तो ये क्या डिफरेंट तरीका है जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। नेट बैंकिंग में क्या होता है कि आपने अकाउंट बनाया, ID बनाया, पासवर्ड बनाया है, और वो आपका जितना भी बैंक अकाउंट डिटेल है उसमें सारा सेव है। आपको कोई भी अलग से CVV नंबर नहीं डालना होगा, बैंक अकाउंट का नंबर नहीं डालना होगा, कोई एक्सपायरी डेट नहीं डालना हो, डायरेक्ट जो आपका पेमेंट, जो पैसा होगा एक्चुअल पैसा, सिर्फ उतना ही पे करना होगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि अगर आपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के मेथड से आपने कोई भी प्रोडक्ट को बाई किया है, तो आपको बाई करने के बाद आपने सपोज कि डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुना है, डेबिट कार्ड के ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपसे क्या क्या कुछ चीजें आपसे मांगता है। सपोज हो सकता है कि आपका होल्डर नेम की मीन्स कि आपका नाम क्या है, आपका अकाउंट नंबर, कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो मांग सकता है, CVV नंबर मांग सकता है, और एक्सपायरी डेट मांग सकता है। ओके, एक्सपायरी डेट आपका, कि आपका जो कार्ड, आपको जो ATM कार्ड दिया जाता है उसका एक्सपायरी कार्ड, मींस कि एक लिमिटेशन के लिए ही इस ATM कार्ड को या डेबिट कार्ड को या क्रेडिट कार्ड को आप यूज कर सकते हैं। हो सकता है उसका टाइम 10 ईयर के लिए हो सकता है 15 ईयर के लिए हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपका बैंक आपको किस तरीके का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कितने दिन का वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या है, ये दीज आर द मेथड बाय विच वी आर पेइंग द ऑनलाइन। क्लियर रोशनी? यस मैम। ओके, एंड आई थिंक एवरीवन इज क्लियर। यस यस शिवम। मैम ये जो गूगल पे था, पेटीएम था, यस, ये एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यही चीज हुआ कि उस एप्लीकेशन को ऐसे मॉडिफाई या ऐसे बनाया गया है या ऐसे सॉफ्टवेयर से बनाया गया